Good morning, students. Myself, Professor Hiral Bausar from Rafael College, Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Science. In last video lecture, we discussed about the forest resources and importance of forest. Now, in today's session, we continue our discussion on the forest, in which first we start the exploitation pressure threats, that is what deforestation. Now what is deforestation? Deforestation means removal of the forest, that is the cutting of the trees, right? The first of all we see the definition of deforestation. Deforestation is the removal of a forest or a stand of trees where the lands thereafter converted to a non-forest use. रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, अगर आप ट्रीज़ को कट करेंगे तो वो जो लैंड हो गई वो क्या हो जाएगी, नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. अनदर डेफिनेशन, डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट. एंड द लास्ट वन डेफिनेशन, डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग अ फॉरेस्ट ecosystem, that is the process of clear cutting of forest, and in its place a different form of ecosystem will come about. And in short form, deforestation means removal of forest, cutting of trees. It was the beginning of agriculture, animal husbandry and the settled life that the destructions of natural ecosystem started. Expanding human establishment needed space, which was obtained at the expense of natural vegetation, which in turn was modified or destroyed. Expanding of human establishment, जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपांडेशन को, ह्यूमन को जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट की है, ज़रूरत पड़ी स्पेस की, तो उसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को रिमूव किया. A number of products such as food, timber, firewood, fruits and nuts comes from the forest. Human need therefore started a systematic exploitation of forest wealth, which intensified as the size of human population grew. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे फॉरेस्ट का रिमूवल भी बढ़ता है, उसका एक्सप्लोइटेशन भी बढ़ता गया. बिकॉज पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा तो एकोमोडेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, खाने के लिए चीज़ें भी उनको चाहिए, राइट. तो उन सब की वजह से फॉरेस्ट का रिमूवल हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया एक्सप्लोइटेशन टर्न इनटू अ ओवर एक्सप्लोइटेशन. नाउ एक्सप्लोइटेशन तो हो ही रहा था, अभी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. इवन दो द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स could not reduce the society's dependence on the forest products. As nations develop, wood remains the basic raw material for constructions, furniture, railway ties, paper, cell phone, rayon, plastics and so many things, right. In developing countries, जहाँ पे developing countries में डेवलपिंग नेशन के लिए वुड इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल. वुड का कहाँ यूज़ होता है, तो कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, रेलवे टाइज, पेपर, सेल फोन, रेयन, प्लास्टिक एंड सो मैनी थिंग्स जहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट इज़ अ फॉर्मिडेबल थ्रेट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेंचुरीज, इकोनॉमी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट. वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन श्रिंकिंग रैपिडली. वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, श्रिंक होते जा रहा है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स. वाइल द टेम्परेट फॉरेस्ट हैव लॉस्ट ओनली 1%. टेम्परेट फॉरेस्ट मीन्स व्हाट, जहाँ पे टेम्परेचर वो लोकेशन के हिसाब से जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेट जोन रहता है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं, वो तो वहाँ पे 1% ही एरिया लॉस हुआ है. जबकि ट्रॉपिक्स हैव द लॉस मोर देन 40% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू दी deforestation. Now what are tropical forest? Tropical forest is a type of forest found in the areas with a high regular rainfall, that is called the tropical forest. तो वहाँ पे 40% फॉरेस्ट का एरिया डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्ट हो गया, रिमूवल हो गया. The current rate of deforestation is estimated to be more than 10 million hectare per year, right. If this rate of deforestation continues, it is feared that the remaining tropical forests may disappear within the century. Okay, तो deforestation एक्सप्लोइटेशन अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है. अगर ये रिमूव हो गया तो क्या होगा, हमारे लिए खतरा हो जाएगा, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के कोज क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है. द फर्स्ट इज़
एक्सप्लोजन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट, एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा. ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर, फ्यूल, पेपर, वुड एक्सेट्रा हैज़ बीन इंक्रीज्ड, राइट. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उन लोगों की ज़रूरत भी बढ़ेगी, राइट. किसकी ज़रूरत बढ़ेगी? तो टिम्बर, फ्यूल, पेपर, वुड एक्सेट्रा. Man has cleared large areas of forest for the agriculture. ह्यूमन बीइंग ने लार्ज एरिया फॉरेस्ट को क्लियर किया है बिकॉज ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सबके लिए. तो पहला पॉइंट है कॉजेज एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मीन्स व्हाट? जो ओवरग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक. ओवरग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द लाइफ स्टॉक हैज रिजल्टेड इन द लार्ज स्केल डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट. लाइफ स्टॉक, पशुओं द्वारा जो ग्रेजिंग होता है उसकी वजह से फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है. थर्ड वन पॉइंट इज pests. Many kinds of insects and pests destroy the trees by eating of leaves. डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स और पेस्ट आते हैं जो ट्रीज़ के लीव्स को खाते हैं और वो जो उसके जो सीड्स और बीज आते हैं उसके अंदर वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. तो वो धीरे धीरे वो ट्रीज़ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो उसकी वजह से वो पूरा ग्रोन नहीं हो पाता है और वो जगह क्या हो जाती है, वहाँ आपका डिफॉरेस्टेशन हो जाए, कोई वहाँ पे ट्री होगा ही नहीं. फायर इज़ अ वर्स्ट एनिमी ऑफ फॉरेस्ट, राइट. फायर की वजह से पूरा एरिया फॉरेस्ट का क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. जैसे कि लास्ट ईयर अमेजोन फॉरेस्ट में हुआ था. देन उसके बाद 2020 स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बुश फायर, राइट. तो फायर इज़ अ वर्स्ट एनिमी ऑफ फॉरेस्ट. इट डिस्ट्रॉयज द फुल ग्रोन ट्रीज, सीडिंग्स, seeds and even the humus. It also causes a large scale damage to the animal life. वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाता है फायर की वजह से, बहुत सारा नुकसान होता है उसकी वजह से. एंड द लास्ट कॉज इज़ वेदर. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस such as a frost, storms and the heat also destroy the forest. These are the causes of the deforestation. The first one is the explosion of human population, overgrazing, pests, fires and weather. Now the next topic is effects of deforestation. Deforestation के effects क्या हैं? The first effect is soil erosion. Soil erosion in the absence of forest or trees. अगर trees नहीं होंगे, especially on the slope पे, the soil gets washed away with the rainwater and it leads to the loss of the fertile top soil, right. अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो पानी की वजह से जो टॉप लेयर, सॉइल का टॉप लेयर है वो क्या हो जाएगा? वॉश्ड अवे हो जाएगा. अगर ट्रीज़ वहाँ पे रहेंगे तो वो लेयर में क्या करेंगे? वो लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा. एक्सपेंसन ऑफ द डेजर्ट्स. डेजर्ट में एक्सपेंसन हो रहा है. Denuded land mass gradually gets converted into sand desert due to the action of strong winds laden by the fragmented rock dust. जो strong winds आता है तो उसकी वजह से जो टूटा हुआ रॉक होता है उस पर जो डस्ट रहता है वो विंड की वजह से वो पूरा डस्ट कहाँ पे जाता है? लैंड पे जाता है, राइट. तो वो लैंड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है. जो डेन्यूडेटेड लैंड होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं सैंड डेजर्ट के अंदर. द इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन द रेन स्कैर्ड एरिया. जहाँ पे रेन नहीं होती है वहाँ पे ये ज़्यादा होता है. माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. Third one is a migration of population. Migration of local and tribal population from deserts to the other fertile land in search of food, leaving behind the vast tracts of sands only. Local and tribal population डेजर्ट से कहाँ पे हो रहे हैं? वो फर्टाइल लैंड पे माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फूड एंड द अदर लिविंग, बिकॉज ऑफ द फूड एंड अदर फॉर एकोमोडेशन एंड मैनी पर्पजेज. तो उसकी वजह से जो पीछे क्या रह जाएगा? वो पूरा लैंड खाली सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. फोर्थ वन इज़ अ डिक्रीज इन द रेनफॉल, राइट. अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिश इतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी नहीं, राइट. तो फॉरेस्ट bring a range due to the high rate of transpiration and the precipitation. In the absence of the forest, rainfall declines considerably. It also causes lesser trees to grow in that area. Fifth one is a loss of fertile land.
फर्टाइल लैंड जो जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है तो वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या होता है वो लैंड का लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. लेस रेनफॉल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड ओइंग टू लेस नेचुरल वेजिटेशनल ग्रोथ. बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल कम होगा तो इसकी वजह से लैंड भी आपकी कैसे हो जाएगी, लैंड आपकी वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई लैंड होगा तो उस पर आप वेजिटेशनल ग्रो नहीं कर सकते. इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट. The climate of a region is mainly controlled by the rainfall, snowfall, etc. Deforestation caused the decrease in the rainfall, which in turn increase the climatic temperature. Then the 7 is a lowering of the water table. जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, जल का जो स्तर है, तो वो क्या होता है, अगर रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो नीचे का जो लेवल है वो रिचार्ज होगा नहीं. डिक्रीज इन द रेनफॉल रिजल्ट इनटू अ लोअर वाटर टेबल ड्यू टू द लैक ऑफ रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज. देन द 8 is इकोनॉमिक लॉसेस. डिफॉरेस्टेशन विल कोज लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स एंड लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ऑफ दी साइट. अगर हम ट्री को कट करेंगे और वो रिमूव करेंगे तो आपको क्या होगा, टिम्बर कम हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा. जो प्रोडक्ट सारे हमें फॉरेस्ट में से मिलते हैं वो सारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. लॉस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना इज द स्पेसीज राइट, सर्टेन स्पेसीज biological species of flora and fauna are getting extinct from the face of planet mainly due to the deforestation. अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो ये जो फ्लोरा और फौना टाइप के जो इंसेक्ट है, स्पेसीज है, वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे राइट, प्लेनेट में से ही उसका लॉस हो जाएगा. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट. उसकी वजह से इकोसिस्टम पे इफेक्ट होगा. ऑफ द वाइल्ड लाइफ विच में लीड टू देयर एक्सटिंक्शन. और उनका ये वर्ल्ड पे रहना ही, अर्थ पे रहना ही पूरा उन लोगों का ख़त्म हो जाएगा, वो बायोलॉजिकल स्पेसीज. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे. लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैज़ रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीडिंग टू द डिस्टर्बेंस इन द इकोलॉजिकल बैलेंस वर्ल्ड वाइड. इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से. लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट. जो हम सारे मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए, वो सारे जो प्लांट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अश्वगंधा होता है, गिलोय होता है राइट, तो वैसे वो सारे जो प्लांट है अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वो प्लांट को कट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो वापस से ग्रोन अप होंगे नहीं इतना जल्दी राइट. उनका पूरा जो वो सारे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. देयर आर मैनी स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल एंड द अदर एडवांटेजेस लाइक द नीम which has been used in the India for the centuries as insecticide, fungicide, in the medicine and in the biofertilizers. Deforestation may lead to the extinction of these type of valuable plant. अगर deforestation करेंगे तो ये सारे plant exist हो जाएंगे अर्थ में से. Environmental changes. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ इज़ प्योरीफाइड बाय द फॉरेस्ट. हम जो एयर ब्रीथ करते हैं राइट, वो प्योरीफाइड करते हैं फॉरेस्ट. आपको पता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर एयर pollutant concentration. These will lead to the global warming, which is a serious effect as well as the threat. Then the 13th point is possibility of food. Deforestation leads to frequent possibility of flood. डिफॉरेस्टेशन होगा तो फ्लड की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी. अगर ट्रीज़ रहेंगे तो वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन दैट एरिया. आपको पता है अभी जगह जगह फ्लड सारे हो रहे हैं इंडिया में. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैरसिटी ऑफ फ्यूअल वुड. फ्यूअल वुड की स्कैरसिटी हो जाएगी राइट. जो लकड़ी का हम ईंधन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्कैरसिटी हो जाएगी, कम होते जाएंगे. इन मैनी प्लेसेस द लैक ऑफ फ्यूअल वुड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन चैलेंजेस local and tribal people, especially where the fuel wood had already been scarce. Shortage of the firewood may cause the serious misery among the tribal women folk. In the rural and tribal societies, fuel budget constitutes the major portion of the household budget.
अगर हम डिफॉरेस्टेशन कटे जाएंगे, फॉरेस्ट का रिमूवल कटे जाएंगे, कि जो लकड़ी का हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, तो उन लोगों के लिए जो ट्राइबल पीपल होते हैं, रूरल पीपल, उन लोगों के लिए स्कैरसिटी हो जाएगी फ्यूल वुड की। इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है? एग्रीकल्चर में बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड इफ द डिफॉरेस्टेशन कॉजेज soil loss or compaction or sedimentation or irrigation system। एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट होता है? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट और ट्रीज आपका जो सॉइल का जो इरोजन होता है वो नहीं होता है। सॉइल आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, फर्टिलिटी को। अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव करेंगे तो वो जो लैंड है फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। आप ग्रोन अप नहीं कर सकते हो प्लांट। Human life and downstream structures. Human life and downstream structures may be endangered by the floods that may be intensified by clearing the forest on upstream watersheds. Human life भी क्या होती है? इफेक्ट होती है फ्लड्स की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। एंड द लास्ट वन इज effects on the other ecosystem. Disturbance of forest ecosystem in a particular location may result in the important changes in the other ecosystem that may be separated by the great distance. Ecosystem में भी, ecosystem is also related with the forest, right? अगर forest में changes होता है तो पूरे ecosystem का भी balance change हो जाता है, right? So these are the topics we discussed, that is deforestation, cutting of trees or removal of trees, and its cause and effects. In the next lecture we continue our forest resources. Till then, goodbye, stay fit, stay safe, thank you.